Shahabuddin, and you are listening to the segment that we have, Tib ki Hikmat ki Baatein, Tibbi Hikmat ki Baatein with Mudassar Fahim Saab, all the way in Karachi, Pakistan. And I think we are ready to rumble. Just to let you know, जो पिछले हफ्ते हमने टॉपिक के हवाले से डिस्कशन की थी, primarily वो मजाजों के हवाले से थी. So I'm going to ask a quick initial question to begin with, in terms of वो जो मजाज की बात जब हमने की थी, that means that we are hot, cold, wet, dry, and with a combination of these things. तो मेरा उसके हवाले से एक सवाल था, तो उसकी थोड़ी सी समरी चाहिए. लेकिन जो आज का टॉपिक है, it's about the mind, it's about the role of dua, the role of zikr, the role of muraqabah, or the English equivalent is meditation. So that is the topic of today within the context of Tibbe Yunani, because that's what it's all about. So without further ado, Khush Amdeed and Assalamu alaikum, Hakim Saab. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी शाहब भाई, आपका सवाल क्या बना कि तिब्बे यूनानी के मुताबिक इंसान को अपनी तिब्बी मजाज का कैसे पता चलेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा? हाँ, ऐसा सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहले तो खुश आमदीद और आपका शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सुनने वालों का शुक्रिया, रेडियो एफएम फीवर का शुक्रिया. मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आप सबके लिए. आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह. और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि हर शो में हर रोज नए नए लिसनर्स आते हैं, पुराने भी होते हैं और नए भी आते हैं. So I just want to give a quick introduction as we normally do. If you want a detailed introduction, I gave it in the first show, so you can go back and listen to the first show, which was a couple of weeks ago. We're in our third week now. So Hakim Mudassar Fahim Saab, who is a prominent figure in complementary and alternative medicine, and it's short. इसको अगर shorten करें तो CAM इसको बोलते हैं. He's a researcher, physician, teacher, and a very confident figure in the field of complementary and alternative medicine. And he is recognized as a distinguished herbal physician and known for his exceptional medical services, and carries an enduring legacy in the realm of CAM. His legacy is founded on academic excellence. And I think this is really important. Research is involved in what Hakim Saab does, and he has a commitment to holistic well-being, and that is what attracted me to this form of knowledge when it comes to our health. And he has a passion for equal health opportunities in communities which are usually marginalized, and he holds a significant place in medical research circles worldwide, encompassing areas such as Eastern medicine, yani the Greek methods of alternative medicine. So if you want the translation of Tibbe Yunani, it is Greek methods of alternative medicine. ये दुरुस्त है हकीम साहब? कदीम तिब्बे यूनानी, जदीद only तिब. Jadid only tib. Okay, so historically it was Greek methods, but now it's only tib. And this involves in the Jadid, yani the modern era, around tib is elements like cupping. Again, this is quite old practice as well. Color therapy, reflexology, and meditation. And today we're going to be discussing the role of meditation, the role of the mind in securing our health. And these practices have offered solutions to personal life challenges, domestic turmoil, psychological issues, spiritual tranquility, and physical ailments, which have benefited people all across the globe. And this is a very brief, mukhtasar sa introduction to our very special guest, who we have all the way from Karachi in Pakistan. तो हकीम साहब, सवाल ये था कि क्योंकि वक्त बहुत जल्दी से गुजर जाता है when we are doing our show, और बेशुमार सवालात रह जाते हैं. तो एक सवाल मेरे जहन में पूरा हफ्ता मेरे जहन में रहा, तो मैंने सोचा स्ट्रेट पहला सवाल यही करूंगा, क्योंकि it left me with questions in the last show कि आपने ये ठंडा, गरम, and wet and dry, ये हमारे मजाज, our temperaments, our bodily temperaments, इसके हवाले से बात की थी, और आपने बेशुमार मसालें भी दी थी. लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारा टेम्परामेंट क्या है, मेरा टेम्परामेंट क्या है, आपका क्या है? कैसे पता चले वी आर हॉट एंड ड्राई, या वेट एंड कोल्ड, या वेट एंड हॉट? हाउ डू वी फाइंड आउट? ये कैसे हमें पता चले? जी, सबसे पहले शाद भाई देखिए, छोटा सा ब्रीफली मैं बता दूं कि पिछले जो सेगमेंट्स में हमने ये कुछ डिस्कस किया
कि हम एक ऐसी टिप को डिस्कस कर रहे हैं जो बड़ी कदीम है, और जो ग्रीक फिलोसफर ने जरूर इस पे काम किया, लेकिन ये एक ऐसी टिप है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस की जाती थी अंडर द यू नो लाइक ट्रेडिशन मेडिसिन। पहले ट्रेडिशन एंड फोक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, उसको फिर एक छतरी के नीचे लाए और उसको उसकी काट छांट कुछ उसूलों के तहत की गई। उसको हम ये कहेंगे, चूंकि यूनानी स्कॉलर से उन्होंने की थी तो उसको कहा जाने लगा तिब्बे यूनानी। लेकिन जब उसका इसकी एक साइंस की इब्तदाई बुनियाद पड़ गई, जिसको मेडिकल की बुनियाद कहते हैं, तो फिर इसमें मैंने अर्ज की थी कि मुख्तलिफ दौर आए इसमें, होते होते बू अली सीना के बाद और आ गया। उसके अंदर एक इस्लामिक एरा बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गई। फिर और मॉडर्न साइंस ने जब और तरक्की की, तो आज का जो मॉडर्न एलोपैथिक साइंस है वो उसी की इसी का एक रुख है, एक ब्रांच है और एक बदली हुई शाख है। ये यहाँ तक हम पहुंचे थे। उसके लिए वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चूंकि उनको कोई असरात लेने होते हैं तो वो केमिकल बेस, अमूमन केमिकल बेस होते हैं। और उसमें लाइफस्टाइल भी डिस्कस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। उसमें ग़िज़ा डिस्कस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं करते हम लोग। चूंकि डिपेंड करते हैं और उसकी टेक्निक क्या है, वो हमारा आज का मौजूद हुआ कि हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं मजाज के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये अर्ज की कि इंसान की बॉडी को यूनानी फलसफे ने ये बताया कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स पाए जाते हैं, जिनको इखलात कहते हैं। खिल्त एक, इखलात चार, पांच, जो भी जितनी भी, तो उसके इन्होंने नाम रख दिए उसकी रंगत की वजह से। सफरा मतलब येलो, ठीक है। सौदा मतलब काला, ऐसे ही हुमरा या दम सुर्ख, बलगम मतलब है सुर्खी माइल, सफेदी माइल और निराहट माइल, ठीक है। तो इस इनकी फिर जब ये पार्टिकल्स सारे इकट्ठे होने शुरू हुए ब्लड के अंदर, एक जगह इकट्ठे होते थे, तो वो एक कैफियत मुरतब करते थे। तो उसको इंग्लिश में ह्यूमर्स कहा जाता है हेल्थ को, और उनके मजमुए से एक मजाज बनता है। मजाज के फर्क से इंसान की पर्सनालिटी बनती है। ये था हमारा आज का हमारा जो मौजू। वो जो पर्सनालिटी है, और वो किससे बनी? मजाज, मजाज से। और मजाज क्या है? इंसानी मजाज के अंदर क्या क्या कहलाएगा? ठंडा, गर्म, खुश्क, तर। लेकिन ठंडा किस चीज से? किस चीज से वो ठंडा हुआ? या गर्म हुआ तो किस चीज से गर्म हुआ? ठीक है। तो इन चीजों को समझने के लिए हम आज की निशिस्त कर रहे हैं। शॉर्टली, चूंकि आपका क्वेश्चन है, वरना मौजूद हमारा कुछ और है, तो हम ये अर्ज करेंगे कि सबसे पहले देखें, चार हिस्सों में इसको बांट लेंगे: खुश्क और तर, गर्म और ठंडा, ठीक है। तो इंसान का मजाज कभी भी ये चार में से एक मुनफरिद हालत में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप या मैं कहूं कि मेरा मजाज गर्म है, या मैं कहूं कि शाह भाई आपका मजाज खुश्क है। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा कंपाउंड हालत में होता है कि कुछ परसेंट उसकी गर्मी के होंगे, कुछ खुश्की के होंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली उसमें भी शॉर्टली आपको बताया था, गर्मी की अपनी लामात हैं, आ, सर्दी की अपनी अलामात हैं, ऐसे तरी की अपनी अलामात हैं, और खुश्की की अपनी अलामात। अगर आप कहेंगे तो मैं एक दफा आपको शॉर्टली बता दूं कि आप जिससे समझ सके कि मेरे अंदर क्या अलामात पैदा हुई। जो आपको डायग्नोज करेगा वो माहिर तबीब करेगा। उसने वो नब्ज भी देखनी है, यूरिन टेस्ट भी लेने हैं, स्टूल टेस्ट भी लेगा, जो हमारे टेस्ट है, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स को भी सामने रख के फिर वो हुक्म लगाना, हम लोग कहते हैं कि जी अनाउंस करेगा आपका मजाज फला है। लेकिन अगर आप खुद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ताकि उनको मदद मिल सके, कोई गजा को मैं रोक के अपने अंदर तबीयत को बेहतरी ला सकूं, तो देखिए कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, गर्म मजाज की, सिंगुइन कहते हैं उसको पुरानी इसमें, उसकी अलामात आपके अंदर क्या पाई जा सकती है। नंबर वन, जाहिर अपीयरेंस में देखेंगे तो सुर्खी माइल या गुलाबी रंगत अमूमन पाई जाएगी। गर्मी की शिद्दत होगी, ज्यादा भूख होगी, बहुत एक्टिव होगा बंदा, एनर्जी होगी उसके अंदर, पेशा वाराना महारत होगी, अपने जो उसके अंदर जो भी उसका प्रोफेशन होगा उसमें बड़ा वो माहिर होगा, ठीक है। ये इसकी पॉजिटिव, उसकी जनरल साइड आ गई। अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे कि उसके अंदर क्या बीमारी टाइप की अलामत पाई जाएंगी, तो उसके अंदर जिस्म के अंदर हरारत चूंकि बड़ी हुई होगी ना, तो उसको फीवर लगेगा, प्यास उसको ज्यादा लगेगी,
और इन्फ्लेमेशन वाली ज्यादा कैफियत होंगी, सोजिशें होंगी, मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन, बार बार इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। उसका रुझान तबीयत का जल्दी से बाकियों की निस्बत जल्दी बुखार की तरफ जाएगा। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और जल्दी उसकी तरफ, बुखार की तरफ, तो ऐसे लोगों को अमूमन हर किस्म के बुखार निस्बतन जल्दी होते हैं। ये हो गया गर्म मजाज का शॉर्ट्स, अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल में भी जाएंगे। अब आते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट था सर्द मजाज। सर्द मजाज लोग जो है वो, इनकी रंगत होगी गोरी टाइप की, ठीक है, गोरी, हल्के रंग की, पेल येलो, येलोइश, सफेदी माइल, ठीक है। अच्छा, उनके अंदर खाना हजम करने की सलाहियत बहुत स्लो होती है। खाना जो भी खाएंगे बाकियों की निस्बत बहुत स्लो हजम होगा, सुस्ती पाई जाएगी उनकी तबीयत में, सर्दी उनको बुरी लगेगी। जैसे ऊपर वाले जो गर्मी वाले साहब थे उनको गर्मी बुरी लगेगी, या गर्मी से वो परेशान होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्दी इनको परेशान करेगी, सर्दी इनको अच्छी नहीं लगेगी। जिस्म में जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे कि उनके अंदर हरारत की कमी पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, तमन्नाई भी कम होगी, हजम भी बहुत देर से होगा, चेहरे पे बेरौनकी होगी, नजला वाली कैफियत होगी, खफकान वाली कैफियत होंगी, भूलने वाली लामतें ज्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। और अब आ जाए खुश्क और तर्क मजाज में से हम खुश्क मजाज को थोड़ा सा समझ लें कि खुश्क मजाज आदमी के, एक तो स्किन खुश्क होगी खुद से, उसकी खुरदरी जिल्द होगी, बाल और नाखून बहुत इसके खुश्क होके सब अकड़ के बहुत कच्चे से हो जाए, जल्दी टूट जाने वाले होंगे, ठीक है। शदीद प्यास होगी, तेज और दलेर शख्स होता है ऐसा, बहुत बोल्ड होगा और बहुत दलेर आदमी होगा। और जाहरी जिस्म उसका सुखड़ा हुआ होगा, सुखेड़ी की तरह होगा, बज़ाहिर ज्यादातर ऐसे लोगों का जिस्म भी थोड़ा सा कमजोर मिलता है आपको। अच्छा, जिस्म में नमी की कमी पाई जाती है, इनको उसी से मुतल्लिका बीमारियां ज्यादा होती हैं। और खुश्क जल्द के हवाले से आपको पता है कि जब खुश्क की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं तो स्किन के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये ऐसे लोगों में स्कैबीज और मुख्तलिफ किस्म की हालतें ज्यादा पाई जाती हैं स्किन की। और अच्छा, खाने पीने के हिसाब से इनको देखा जाए तो ये हार्ट बर्न और कब्ज के मसाइल से ज्यादा गुजरते हैं। हजम के मसाइल में से इनको क्या है, जल्दी से सब कुछ हजम होता है लेकिन कब्ज हो जाता है। अच्छा, तर मजाज के लोग जो होते हैं उनके अंदर ना हर चीज नरम मुलायम होती है, क्योंकि वाटर रिटेन होता है उनकी बॉडी के अंदर, हर चीज में पिलपिलापन पाया जाता है, मजाज के अंदर भी, स्किन के अंदर भी, कलर के अंदर भी, और पसंद नापसंद के अंदर भी, ठीक है। ऐसे लोग अमूमन हुस्न परस्त होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं। अच्छा, इनकी भूख अतदाल पे होती है, आ, जिस्म में नमी भी मुतदल होगी, मजाज में जो है वो कूल एंड काम किस्म के होंगे, और जल्दी कंप्रोमाइज कर लेने वाले आदमी, माफ कर देने वाले लोग होते हैं यार, ठीक है। क्योंकि उनको अपने जो माहौल है उनके गिर्द, जो वो क्या कहना है, खुशी वाला एक माहौल में रहना चाहते हैं, तो उसको वो समझदार होते हैं तो उसको जाया नहीं होने देते। तो ये कुछ मोटी मोटी मैंने लामतें बताई, अगर कहेंगे तो हम इसकी डिटेल में आगे सही। चले जाएंगे, तो इससे भी हम नहीं आगे यार, बढ़ सकते मेरे ख्याल में इतना बहुत है, क्योंकि हैं। बस इसी को ही समझ लेना एट दिस स्टेज आई थिंक इज़ वेरी यूजफुल। जी हाँ। और सब सवाल हैं एक दो, कि ये जो हमारी कैफियत हैं, these these four, almost like four seasons that live जी हाँ। inside of our bodies, hot, cold, wet and dry. जी हाँ। तो मेरे ज़हन में ये बात आई है कि जब ये सारे परफेक्ट हों तो हम हमारी सेहत अच्छी रहती है, जब ये जी हाँ। इन सब चीज़ों का बैलेंस हो। और कभी-कभी जी हाँ। ऐसे होता है कि एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन इट्स रेलेवेंट कि हम हकीम को समझना चाहिए कि अब इसमें गर्मी ज़्यादा आ गई है, अब सर्दी आ गई है, बिकॉज़ इम्बैलेंस आ गया है बदन बिल्कुल में। ऐसे ही। तो फिर उसको वापस बैलेंस में लाने के लिए हकीम साहब फिर मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं वगैरह-वगैरह। बिल्कुल आपने बहुत ये अच्छी मेरी मिसाल समझ, दी। एनालिसिस सही है, ये समरी? बिल्कुल आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। इसको हम यूं आसान करें कि हमें बाहर के माहौल, जो बाहर का मौसम चल रहा है और अंदर का मौसम चल रहा है, उसको समझ के चलना होता है। अगर बाहर का मौसम सर्द है और खुश्क है, अंदर का मौसम सर्द खुश्क होगा तो क्या होगा, नमूनिया हो जाएगा। तो हमने ऐसी गजाएं रोक देनी है जो सर्द और खुश्क है, तो हम अंदर का माहौल क्या रखेंगे, गर्म और खुश्क या गर्म और तर रखेंगे, ठीक है। सही। तो ये चीजें गाइडलाइन कैसे, देखिए आप कॉफी जो है अगर खुश्क को गर्म मान लें इसको मजाज को, तो हम अमूमन सर्दी में पीते हैं, सर्द इलाकों में बहुत पिया जाता है, गो कि गर्म इलाकों में पिया जाता है जहाँ पे गर्मी के साथ तरी पाई जाती है।
लेकिन अगर आप कराची जैसे इलाकों में अगर आ जाए, आप कॉफी पियेंगे, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, खुश्की की अलामतें एकदम आ जाएंगी। इंग्लैंड के अंदर नहीं होगा। ठीक है, सही क्योंकि कराची के अंदर गर्मी खुश्की का माहौल है, और आपने गर्म खुश्क और खुश गर्म गजा ले ली या कॉफी ले ली, तो वहां पे उसकी अलामतें एकदम अपीयर हुई जबकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो तबीब का एक काम ये होता है, जैसे कुछ लोग जो है वो सर्दी अक्सर आइसक्रीम खाते हैं सर्दी में, कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता, जबकि आप दूसरे के सामने नाम भी लेते हैं तो नजला जुकाम खांसी हो जाता है। सही उसकी वजह क्या है कि बाहर का सर्द खुश मौसम और जो आइसक्रीम जिसको माफक आ रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश गर्म मौसम चल रहा है, जो कि बाहर के मौसम से आगे निकल गया। अब वो आइसक्रीम लेगा उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, सही लेकिन अगर खुश्क सर्द माहौल के मौसम के अंदर एक ऐसा बच्चा आ गया जिसके अंदर खुश्क सर्दी ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, चावल खा के, दूध और ठंडी चीजें खाने की वजह से, उसको आपने आइसक्रीम खिलाई, क्या होगा, स्ट्रेट अवे नमूनिया की तरफ जाएगा, और बाकी अलामतें सर्दी की सारी पैदा हो जाएंगी। सही एंड दिस इज रियली important to understand for our all of our listeners, क्योंकि बात तो उर्दू में हो रही है। जी हाँ। मेरी तो टूटी फूटी हुई उर्दू है, लेकिन हकीम साहब is speaking very fluid उर्दू माशाल्लाह। Just a quick summary of this, that and this is why तिब यूनानी is very unique, because देखें ये जो मौसम बदन के अंदर होता है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, तो खराबियां होती हैं, लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट। हकीम साहब ने अभी फरमाया दैट यू हैव टू लुक एट द एनवायरनमेंट आउटसाइड, के द वेदर, something as simple as the weather. I mean, is the weather dry outside? Is it hot outside? Is it wet outside? Is it cold outside? That's going to have an influence on uh, the uh, the health of all of us as individuals. And जो तबीब होते हैं, जो हकीम होते हैं, they analyze all of these things. This is why the holistic elements of Tiba Yunani really appeal to me. I thought we've got to learn more about this. And remember, to our listeners, I'm learning as we're speaking. I am by no means an expert here. Hakeem Saab is an expert, and he's literally teaching me, but I'm bringing all of our listeners on board as well. आप सारे हमारे साथ चल रहे हैं। ये एक conversation हो रही है, a bit educational. It is a little bit like a lecture, like we're going to try to keep it in as much as a discussion format as possible. So this element of understanding that we are different temperaments, we are hot, cold, wet, dry. Always it works in twos. Hakim said it works in double. You cannot just be one. You're either going to be dry and hot, or dry and cold, or wet and hot and wet and cold. Uh, there's always going to be a dual factor in the way that your inside body works, and there are four elements within your body that make your temperament. And there's an imbalance in that, without going into too much detail, because there's a huge science in this. And frankly, we just haven't got time to go into the deep science of this. But there's a weather inside of us, and there are temperaments inside of us, and there are liquids inside of us that are impacted by the food that we eat, and also by the weather outside. In a nutshell, this is what has just been discussed. But our next topic, when we're going to come back after the 5:30 adverts, we're going to look at how our mind, the power of our mind, how that impacts our health, and how Tibbi Yunani involves the mind in bringing back our health, or reclaiming our health, or even starting off with good health. अच्छा हकीम साहब, ये जी जी, समरी सही थी? ये समरी आपकी बहुत खूब थी। माशाल्लाह। चले बहुत माशाल्लाह, बहुत कुछ ना अच्छा। कुछ मेरे दिमाग में जा रही हैं फिर बातें, जी हाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ठीक जा रही है। अच्छा, so we've got about 5 minutes before we go into the adverts. 446 saying Assalamu alaikum to Bhai Hakeem, वालेकुम अस्सलाम। and Raja Tariq Saab from Panjiri और आज़ाद कश्मीर का इनका तल्लक है। उन्होंने सवाल पूछा, can one's mizaj change during his life, e.g. if he was khushk before, then can one becomes tar? ये भी मैंने सवाल पूछा था कि और मेरे जहन में तो आया था, आई एम नॉट श्योर इफ आई डिड आस्क दिस, मेरा भी यही सवाल था एक, कि क्या हम एक ही मजाज, पूरी जिंदगी एक ही मजाज के रहते हैं? नहीं, ये नहीं नहीं, बदलता रहता है। जी हाँ, देखिए, एक होता है फैमिली का मजाज, फिर है एक पर्सन का मजाज, फिर है उस एज का मजाज। वेरी सिंपल सा समझ लें, बच्चे का मजाज होगा तरी वाला, बच्चा बड़ा होगा जवान हो जाएगा, खुश्की वाला मजाज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा गर्मी वाला मजाज हो जाएगा, और खुश्की के बाद फिर तरी वाला मजाज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक सर्कल है, उसके अंदर यूं घूमता है इंसान। खवातीन के अंदर ज्यादा मजाज, अगर खातून है उनका मजाज गर्म रहेगा,
गर्म से तर हो जाएगा, गर्म से खुश्क हो जाएगा, खुश्क से गर्म हो जाएगा, लेकिन रहेगा गर्मी में। मर्द का जो मिजाज होगा वो खुश्की में रहेगा, खुश्क से गर्म हो जाएगा, गर्म से खुश्क हो जाएगा, खुश्क से सर्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक खुश्की का साइकिल है, खुश्क, ये साइकिल है। ठीक है, साइकिल, हाँ। तो अगर एक दफा, अब मेरा मैं हूं मर्द, मेरी फैमिली का मिजाज है खुश्क सर्द, लेकिन मैं जवानी में आके खुश गर्म गजाएं खा के मैं खुश गर्म पे आ गया हूँ, लेकिन मेरा अपना बुनियादी मिजाज खुश गर्म है, खुश्क सर्द है। तो किसी वक्त भी मुझे बीमारियां जो होंगी मेरी फैमिली की वो खुश्क सर्द वाली होंगी। लेकिन अगर मुझे बचना है तो खुश्क गर्म या गर्म खुश्क अगर मैं गजाएं लूंगा, तो मैं ना सिर्फ अपनी जवानी की बीमारियों से बच सकूंगा, बल्कि अपनी फैमिली डिजीज से भी निकल सकता हूँ, बच सकता हूँ, जब तक मैं लेता रहूंगा। तो उन साहब के लिए जवाब जो मीरपुर से पूछा गया, उनके बोले बिल्कुल आप अपने मिजाज में तब्दीली ला सकते हैं। सही। I hope that answers your question, Raja bhai. Um, in a nutshell, that you go through 4 stages of these temperaments. So when you're a child, you're of a particular. जब बच्चे होते हैं तो वो तर होते हैं, आपने बोला तर प्रमाण। तर जी So हाँ, तर when you so you're फ्लेगमेटिक। there is one you always at a particular period in your life you have one temperament which is more prominent, which is stronger than the other three. And depending on what stage and what age of your life is, and this is where Tabibs and Hakims come in, because they also look at how old you are, and they probably ask questions about your family environment as well, जी which is again really interesting. And this is how they get to the root of your problems. That's how they get to the root. And this is the sort of things that modern doctors do not do. They're not looking at the environment outside. They're not really looking at the environment inside of you. They're not looking at, okay, what stage are you in your life? And this is why I feel that this knowledge and this information, it's pretty crucial. अच्छा, राजा भाई उन्होंने फरमाया कि थैंक यू, तो उनको समझ आ गई है. वेलकम। Sami is also tuned in from the Fever Crew. Khush Amdeed, and welcome, Sami. Thank you very much. Or I think Sami is probably enjoying my summaries, yeah, because we mentioned this. We did a bit of a summary last week, and she found it advantageous, and we're definitely doing more of this. Just summarizing it for our listeners who Urdu Hindi isn't at optimal levels, and I'm going to be trying my best. Acha 446 also saying, MashaAllah, very good information. So that's all good. Acha. So I think, yeah, this was just a bit of a summary from last week. If you want to listen to last week's episode, I think कुछ चीज़ें दोहराई गई थी, दोहराना अच्छी बात है, क्योंकि हम भूलने वाली मखलूक हैं. जी और आज जो है ना, वो दिमाग की तरफ जाएंगे कि हम दिमाग को कैसे तेज भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. लेकिन जो आज का टॉपिक होगा, इट्स माइंड बॉडी कनेक्शन इन तिब. एंड इन द लास्ट half an hour we are going to try and do our utmost to discuss spirituality and healing in tib, the mind body harmony, muraqaba, or in English they call it meditation, but meditation actually doesn't answer muraqaba. Muraqaba is a word in itself that explains it. दम, आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि हम दम भी करवाते हैं, तो उसका भी रोल, ख्वाबों का रोल, एंड ये हम फिर अनकॉन्शियस की तरफ चले जाते हैं, गैब में चले जाते हैं. ये थोड़ा सा गैब का इल्म होगा आप सब के लिए. और जिक्र, ये सब जानते हैं, और दुआ. काफ़ी टॉपिक्स हैं. we're going to try our best to give you just a snippet of this in the last half an hour. So we have about a minute left before we go into the adverts, and I'm going to ask Hakeem Saab to hang tight. But just before that, I came across uh, Deepak Chopra, and I have mentioned Deepak Chopra in the past, and it was really interesting. And I'm just quickly finding it, and we're going to do it the good old style. And this is about the power of the mind, and he gives an example of rabbits, and that's all I'm going to say. Just a bit of a warm up to get you thinking about the mind. Abhi, jo humne baatein ki hain, it was very physical, and now we're going to get into things that are non-physical. Study done in Ohio State University. I'm just gonna, oops, that we're extremely. And go back. ये दुरुस्त था हकीम साहब के. अभी तक जो है ना, 2 शो 2.5 शो जो किए हैं, वो फिजिकल पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो था, लेकिन ये आखिरी जो है ना, थोड़ा सा नॉन फिजिकल की तरफ जाएंगे. हम चले जाएंगे मेटाफिजिक्स की तरफ चले जाएंगे अभी। मेटाफिजिक्स, हाँ.
the beyond tangible. Right, let's have a quick listen to this, and then we're going to go straight into the ad break. This is just a bit of a warm up for everyone of what we will be discussing. Oh, it's not going to work because I'm doing it just a good old style. There was a study done in Ohio State University where they were feeding rabbits diets that were extremely high in cholesterol. And they found to their amazement there was one group of rabbits that never got the high cholesterol levels. After a while, they found out that the technician who was feeding these rabbits, instead of just throwing the food at them, he would stroke them and pet them and cuddle them and kiss them and then feed them the same poisonous food. But now, as a result of that experience of happiness, they made chemicals inside their brain and the body that turned the cholesterol into a completely different metabolic pathway, making the crucial difference between life and death from what kills more people in our civilization than anything else. So it's not just the food you eat, but what your awareness, what your consciousness, and your state of emotions is at the time you're eating. Your state of mind can convert nectar into poison and the other way around to poison into nectar. There was a study done in Ohio State University where they were feeding... That was really interesting that your state of mind can turn nectar into poison and poison into nectar. Bas damag. So really looking forward to what Hakeem Saab is going to shed light in the Unani way. Aaj kudarti ye mere samne ek choti si video aayi thi and it fits really well with the show. Okay, do not go anywhere. We're going to be back in a jiffy. Khush Amdeed, and welcome back. You are listening to Fever FM on 107.3. Welcome to everyone who may be online throughout the United Kingdom or throughout the world on radioasianfever.co.uk. We have Hakeem Mudassir Fahim Saab, and we are into the second and final part of Tib Ki Hikmat Ki Baatein Wala show. So we give a fantabulous summary from the last week, and you can see that the summary has taken us, just from the last week, the summary of last week has taken us half an hour to do, and this is how rich this knowledge and this information is. But we have one more question from Sami, and we're going to come to that in a minute, and then we'll go into the spiritual elements of this actual show. And we may well, I think what will happen, that the beginning of next week's show, we're going to give a summary of the second half. Lagta hai kuch aise hi cycle chal raha hai, because I think probably that's the wise way to move forward. So people can connect every single show each time, from this one to the last one and from this one to the next one. तो हाजी तौसीफ एंड मम्मी जी भी हमारा साथ दे रहे हैं. ये अभी जिम से आए हैं हकीम साहब, ये मुझे पता है, देख लें कि we know what some of our listeners do. हाजी तौसीफ और मम्मी जी दोनों जिम जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जिम खत्म हो गया और अभी वो शो सुन रहे हैं. So welcome. Right, Sami is saying, how can I tell if I should be eating hot or cold food? मुझे कैसे पता चले कि मुझे गर्म या ठंडे खाने चाहिए? जी देखिए, अगर ये एक साइकिल है, अगर आपके अंदर सर्दी की अलामात हैं और तरी की अलामात, तो आपको हॉट चीजें लेनी है. सर्दी की अलामत क्या है और तरी की अलामत क्या है? मसलन बार बार यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, जिस्म का सर्द रहना, टच से भी सर्द होना और अंदर से भी आपको महसूस होना सर्दी का लगना, जिस्म में सुस्ती, अगर सर्दी नहीं लग रही, नॉर्मल मौसम है, जिस्म का सुस्त होना, चेहरे का फीका होना, रंगत का फीका होना, ये सारी अलामतें बता रही हैं कि आपको हॉट खाना खाने की जरूरत है. ठीक है. अच्छा, अब आ जाए इसके ऑपोजिट. अगर आपके अंदर बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपको टेम्परामेंट आपका बहुत ऐसा हो गया जो एग्रेसिव किस्म का, आपका हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं और आपके टच के ऊपर आपको गर्म महसूस हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, पेशाब जल कर आना, या आपके पेट से ऐसा लग रहा है जैसे आपको मोशंस हो रहे हैं जो बार बार हो रहे हैं, तो इसका मतलब वक्त आ गया आपको कोल्ड खाना खाने का. ठीक है. तो ये बहुत सारी आमतें तो आप बुनियादी तौर पर फौरन समझ जाते हैं कि यार हमने क्या लेना है. मैंने भी आपको अर्थ किया, अगर रनिंग नोज है, इसमें आपको आइसक्रीम, दूध, मक्खन और ठंडी चीजें और तरी वाली चीजें नहीं खानी. आपको खुश्क चीजें लेनी है और गर्म चीजें लेनी है. अगर इसके ऑपोजिट आपका नाक बंद है, आपका नजला नहीं बह रहा, सर दर्द फटने वाला है, आपको कब्ज भी हो चुकी है, तो क्या करेंगे? अब आपको वो चीजें चाहिए जो आपने बंद की थी. आपको चावल भी खाएं, आप तरी वाली चीजें भी खाएं, ठीक है, मक्खन भी खाएं, सब कुछ खाएं,
ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरचेंज होता रहता है, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में अर्ज की थी, कभी भी ये सिंगल नहीं होता। ये ऐसा नहीं होगा कि एक मरीज है उसकी खुश्क नब्ज है, एक की गर्म है एक की तार, नहीं। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पहले प्लस होते हैं आपस में 8 हो जाते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं, 128 टाइप्स होती हैं, 128 टाइप्स। एक हकीम का काम होता है 128 टाइप्स को रिकग्नाइज करना। यस रिकग्नाइज करना, ये इसका काम है कि ये कहाँ खड़े में कौन सा वाला है। तो ये भाई उसमें आप जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप बहुत सारी चीजें डील कर सकते हैं इसमें, क्या है। सही। ठीक है, तो अब हम आ जाए दूसरे मौजूद की तरफ, या जिस तरफ के। हाँ जी, चलते हैं होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ, जो आज का टॉपिक है, ऑफ द माइंड एंड body. And in Tib, I'm just going to give a brief introduction and then I will give way again to Hakeem Saab to elaborate further on this. That in Tib, the mind and body are not viewed in isolation. जो बदन के अमराज हैं, or whatever issue that you have, is deeply connected with mind, with our thoughts, the way that we think. And instead, they are discussed as an integral component of a unified whole. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ वेस्टर्न दुनिया में, बल्कि उधर भी पढ़ाते होंगे, एक सिस्टम्स अप्रोच होता है एक चीज़ का। सिस्टम, पूरे सिस्टम को देखते हैं कि एक मशीन का चलना या एक सिस्टम का चलना, हर जो पुर्जा, हर जो एक हम तो सोसाइटी के तौर पे सिस्टम्स को देखते हैं कभी कभी, कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको भी चलना है, जो हुकूमती निज़ाम है उसको भी चलना है, जो तजारत का जो है वो उसको भी चलना है। सो एवरीथिंग वर्क्स इन अ सिस्टम, और जब सारा फ्लूइड तरह से काम कर रहा है तो आपका सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आई थिंक दिस इज सिमिलर, कि माइंड एंड बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब आप हेल्थ का सोचेंगे, आपका दिमाग और आपका बॉडी इज intrinsically connected. And temperament and emotions, according to Unani principles, an individual's temperament or mizaj, जो हमने अभी बात की है पिछले आधे घंटे के लिए, it plays an important role in both mental and physical health. Imbalances in temperament can manifest as disturbances in mood, affecting overall well-being. And I think this is the key thing. जब when we are not well, हमारे मूड चेंज होता है सबसे पहले मेरे ख्याल में। एंड आई थिंक वी नीड टू रियलाइज कि यार वो कहते हैं एम ही इसका मूड ऑफ है, लेकिन ये नहीं पता देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज व्हाई सबसे पहले आपका मूड ऑफ होता है, एंड दैट्स टेलिंग यू कि आपका माइंड बॉडी बैलेंस में तकरार आ गया है, टकराव टकराव आ गया, टकराव आ गया है। या हाँ, मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ साथ साथ, टकराव भी आ गया है। And I think that's another element that hopefully we're going to talk. And impact of stress and emotional states. Stress and emotional states can profoundly influence physical health. Chronic stress, for example, may contribute to imbalances in the humors, potentially leading to a range of health issues. तो ये humors, ये मजाज की बात ही कर रहे थे। अगर आप constant stress में रहते हैं, आपके humors, आपके मजाज में ये तब्दीली लाती है, और उसकी वजह से आपको health issues आते हैं। And there is something called brain-body communication. Tibbi teaches emphasize that communication between the brain and the body. आपने पिछले हफ्ते फरमाया था कि बस एक अल्फाजों के साथ ही हम बदलाव लेके आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है, So कुछ thoughts and इम्पैक्ट emotions, पैदा किया जा सकता है, फिर बोलें, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अल्फाज कुछ ना से, जीरो बदल से अल्फाज के जरिए, पैदा हाँ। किया जा सकता है। And this is really important. We take so many things for granted. It's unbelievable. Thoughts and emotions are seen as dynamic forces that can influence physiological processes and vice versa. Like your thoughts and your thinking and words can influence our health. I mean, where would you hear this type of thing? कि जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप सुनते हैं, कि इसका असर आपके सेहत पे होगा. You don't या get to hear these things in generally, या or I often realize that we take too many things for granted, too many things for granted. वैसे ही हो रहा है, सूरज उधर से निकलता है फिर उधर जाता है, इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है लेकिन हम सोचते नहीं हैं। और ऐसे ही मसलन आवाज़ से हील होना, अच्छे ख्यालात से हील होना, इसकी तरफ हम जाते भी नहीं हैं। या तो हकीम साहब, द फ्लोर इज़ ओवर टू यू। इसके हवाले, ये जो इंट्रोडक्शन किया है, इसके हवाले से आप ज़्यादा तफसील में क्या फरमाना चाहते हैं कि माइंड का
रोल हमारे सेहत के ऊपर? देखें, जब बहुत सारी चीजें हम इंसान के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो इंसान को जब डिस्कस किया जाएगा कि एक इंसान एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसकी अपनी शख्सियत है, और उसकी एक रूह है। ऐसे ही है। जो रूह एक बॉडी में जाती है, उस वक्त तक शनाख्त नहीं रखती जब तक उसका अपना एक मजाज नहीं बन जाता। देखा ये जाएगा कि वो रूह जिस बॉडी में गई वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। ठीक है, कोई भी वो जिस्म है, वो कोई भी रूह है, मतलब क्या वो जानवर है चाहे वो जानदार कोई सा भी है, उसके अंदर रूह गई उस जिस्म के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रूह गई और किस जिस्म में गई। चीते की अगर चीता नुमा खसलत रखने वाले इंसान की रूह अगर बकरी नुमा जिस्म में जाएगी, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि बकरी की खुसूसियात चीता नुमा हो जाए, लेकिन वो रहेगी बकरी। इससे समझ रहे हैं आप? अब वो एक ऐसे माहौल में रह रही है जहां पे सारे हाथी हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं जिनको किसी चीज से खतरा नहीं है, तो वो बकरी आपको लाउबाली नजर आएगी, बेफिक्र नजर आएगी, वो अपने आप को हाथी समझ रही है, क्योंकि उसका वास्ता नहीं पड़ा अभी खतरे से। और जो ही खतरे से वास्ता पड़ेगा तो वो तलफ हो जाएगी। ये इसको समझ रहे? एनवायरमेंट का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपके जिस्म पे बहुत ज्यादा है। आप अच्छा, अशरफुल मखलूकात हैं। जी बोलिए। इसको आप रूह फरमा रहे हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट की रूह या नहीं फिजिकल नहीं नहीं, अभी अभी हम सिर्फ रूह, रूह मतलब जिंदगी। जिंदगी? अब मैं आता हूं अपनी तिब्बी रूह की तरफ। एक होगी मजहबी रूह, जिसको कहते हैं वो मरने के बाद आसमान पे चली जाती है, या जो भी इसके बारे में अकायद है। रूह के लिए एक पुराना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबिक में, कुरान में भी हुआ है। उसको कहते हैं रीह। रीह का मतलब होता है हवा, गैसेस। तो रूह क्या हुई? लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ गैसेस। इंसानी बॉडी के अंदर 3 से 4 से 5 किस्म की अरवाह पाई जाती हैं, जो कि मेन रूह, जिसको हम मजहबी रूह कहते हैं, उसको वो फीड करती है। ये समझ में आ रहा है? इजी है या मुश्किल है? मेरे ख्याल में इतना इजी नहीं है, हमारे सामीन के लिए ये बिल्कुल ठीक नई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखिए, जैसे हार्ट है, फिजिकल एक चीज है, वो पंपिंग कर रहा है। क्या पंप कर रहा है? वो एक पानी पंप कर रहा है जिसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं, जिसको हमने इखलाक बताया आपको कि वो लिक्विड्स हैं, उसके अंदर सॉलिड मटेरियल्स पड़े हुए हैं, सॉल्ट पड़ा हुआ है, मिनरल्स पड़े हैं, वाइटामिन पड़े हैं, अब उसको पंप कर रहा है। लेकिन सर जो चीज वो पंप कर रहा है ना, वो गैस है, वो एयर है। वो पंप नहीं है, वो गैस नहीं है, वो ये वाली कार्बन अपना ऑक्सीजन ये वाली नहीं है जो ये बाहर हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। वो अंदर की प्रोड्यूस हुई भी एक अलग से गैस है। इस टाइप की बुनियादी तौर पे 4 गैसेस हैं जिनको रूह कहा गया। इनका डिसफंक्शन होने से भी डेथ होती है, इनके डिसफंक्शन होने से स्ट्रेट अवे डेथ होती है। एक का भी डिसफंक्शन होगा, उसकी डेथ होगी, उस ऑर्गन की डेथ होगी, तो बॉडी डिसफंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज जिसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, जिस रूह का, वो परवान चढ़ती है लिक्विड से, तरी से। इसको समझने की चीज है। उसका एक लेवल होना चाहिए। अगर उसका एक लेवल नॉर्मल लेवल पे है, उस तरी का जिस्म के अंदर, उसके ब्लड के अंदर, उसके बाद उसके एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होगा कि वो एक अच्छा जहन रखने वाला जिस्म होगा, वो एक अच्छी सोच रखने वाला जहन होगा, वो एक पाकीज़ा, जिसको अभी मैंने तरी की लामतें आपको बता रहा था मैं, वो एक पाकीज़ा सोच रखने वाला, आर्ट्स में दिलचस्पी लेने वाला, हुस्न का ख्याल रखने वाला, हुस्न से प्यार करने वाला आदमी होगा। दुनिया एक हसीन तरीन चीज है, वो उससे प्यार करेगा। ठीक है, मोतदल आदमी होगा, मोतदल मजाज का, वो खुद भी खूबसूरत होगा। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करता है, बिल्कुल इसकी मिसाल होता है वो बंदा भी खुद भी खूबसूरत होता जाता है
और वो खूबसूरती को पसंद कर रहा होता है। लेकिन ऐसा जब होगा जब वो नॉर्मल अपने अपने लेवल में रह रहा है, अचानक एक खुश्क जुमला आ जाता है। खुश्क जुमला, इसको समझने के लिए जो आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे ना, खुश्क जुमला ये है कि यार क्या फायदा तुम्हारी खूबसूरती का, मर तो तुमने जाना है, मायूसी पहले। अब वो जो तरीका लेवल था वो नीचे चला गया। जैसे ही वो अपने नॉर्मल लेवल से नीचे गया तो डिप्रेशन पैदा होगा। वो वही बंदा जो हुसन परस्त था, खूबसूरत था, एक्टिव था, सब कुछ था, वो डिप्रेशन का मरीज कहलाएगा। ठीक है। अब एक और बंदा मिल गया, मुआलिज मिल गया। उसने देखा कि इसके अंदर तरी की अलामतें हैं, ठंडा हो चुका है, ये ठंडी वाली सुस्ती की अलामतें सारी आ चुकी है, इसके अंदर होप खत्म हो चुकी है। वो उसके अंदर ऐसे जुमले का इस्तेमाल करेगा जो उसके जिस्म के अंदर मौजूद रूह, जो तीसरी रूह है, जिसका ताल्लुक हम कहते हैं लीवर के साथ है, उसको कनेक्ट करेगा अल्फाज की सूरत में। एक तो वो खाने पीने में ऐसी चीजें बताएगा जो गर्म होगी, अल्फाज गर्मी के देगा। मसलन वो हो सकता है गैरत की बातें करें, क्या तुम्हारे खानदान में ऐसा ही होता है, क्या तुम्हारे मजहब में कहाँ गई वो हुम्मियत, या तुम्हारे बच्चे क्या रोड पर आके भीख मांगेंगे। अब उसके अंदर वो जज्बा सर्कुलेशन, जज्बा हीट हीट प्रोड्यूस हो रही है, हवा, यस। तो वो क्या होगा, ग्लैंड्स काम करने लग जाते हैं। इन जुमलों से क्या होगा, ग्लैंड्स काम करने लगेंगे, और ग्लैंड्स के अंदर छुपी हुई वो रूह, वो गैसेस, वो जाके काबू करेंगी ब्रेन के अंडर लेवल पे गए हुए गैसेस को अप करने में, उसको बॉयल करके अप लेवल पे ले जाएंगी। तो वो बंदा एक नॉर्मल स्टेट में दोबारा आ जाएगा। और इसकी मिसाल हम आए दिन, मैंने आपको पिछली मरतबा भी अर्ज की थी, हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक शदीद खौफजदा बच्चा माँ को देख के नर ठीक हो जाता है। शदीद डरा हुआ आदमी, शदीद परेशान आदमी एक अच्छी सूरत को देख के, बुजुर्ग को देख के, वो भूल जाता है कि वो शदीद परेशानी में था, या उनके कुछ अल्फाज होते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, है ना। हाँ, और बच्चे अगर अपने वालिद को भी देखते हैं कभी कभी, छोटे बच्चे, तो वो सिक्योरिटी भी फील करते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये सारी चीजें देखें, अब देखें, हम ये जानते हैं कि वो एनवायरनमेंट जो है ना, जो महफिल है, सोबत, हम बुजुर्गों से भी सुनते थे, महफिल का असर होता है, सोबत एनवायरनमेंट का असर हो रहा है आपके ऊपर। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक ऐसे माहौल में आप बैठे हुए जहाँ यही मैं बातें कर रहा हूँ, आप मस्जिद में बैठ के सुन रहे मेरी इन्हीं बातों को, उसका इफेक्ट कुछ और होगा। आप एक डांस क्लब में बैठ के मेरी इन्हीं बातों को सुनिए, इन्हीं का असर आपको कुछ और होगा। इन्वायरमेंट अब असरअंदाज हो रहा है। फिर मेरे अल्फाज का चुनाव, फिर मेरे अल्फाज के साथ मेरे लहजे का उतार चढ़ाव, ये मिलकर आपके अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं और करते हैं। इसी तरीके से काम करता है दम। अब इससे अगला दर्जा, उन्हीं ख्वाहिशात को जो मैंने अपने अल्फाज की सूरत में आप तक पहुंचाया कि भाई तुम्हें एक्टिव होना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा मरीज जो डिप्रेशन में चला गया है और वो डाउन है, अब उसको एक्टिव होना चाहिए, मेरे जज्बात है ना। मैंने उसका अल्फाज इस्तेमाल किया, उसको उम्मीद का इस्तेमाल किया, उसको याद कराया तुम कैसे स्पोर्ट्समैन थे, वो एक्टिव हो गया। या अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो मैं अपने अंदर उन जज्बात को रूहानी तौर पर ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा। मैं जब अच्छी ख्वाहिशात अपने अंदर लेकर बैठूंगा आपके सामने, आप मेरा चेहरा देखेंगे, बोलेंगे यार ये बंदा ठीक है। जैसे ना आप कह रहे हैं वालिद को देखते हैं बच्चे, और वो सुकून हो जाता है कि ये मेरी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि वालिद के अंदर हर वक्त बच्चे की प्रोटेक्शन मौजूद है। बच्चा उसको रीड ज्यादा जल्दी बेहतर कर लेता है इंसान की निस्बत, बड़े इंसान की निस्बत। तो बच्चा जब ये देखता है कि मेरी प्रोटेक्शन ये रही, तो क्या हुआ कि बगैर टच किए हमने वो ट्रांसमिट कर दिए अपने जज्बात। बिल्कुल इसी तरीके से माँ अपने जज्बात को ट्रांसमिट करती है, बच्चा अपनी भूख के एहसास को बगैर बोले माँ में ट्रांसमिट करता है। ये एक ऐसा टेलीपैथिक निजाम है। ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल ये देता होता हूँ, एक और मिसाल देता होता हूँ। अब दम की तरफ जा रहे हैं या अस्कार की तरफ जा रहे हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं, तिब में कैसे काम कर रहे हैं, इसके समेत बता रहा हूँ। देखिए ये आप, ये हाथ है, ये हाथ एक कोई डिप्रेशन के मरीज के ऊपर आप रखते हैं, कहते हैं कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ। अब ध्यान में रखिए आपने क्या किया, बाज का तो अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें, खाली ऐसे से करें उसके हाथ पे, उसको हिम्मत मिलती है। यही हाथ अपने दोस्त के हाथ पे रखते हैं, कुछ और असर है।
बेटे के हाथ पे रखते हैं तो कुछ और असर है, माँ के हाथ पे हाथ रखते हैं कुछ और असर है, बीवी के ऊपर हाथ रखते हैं तो कुछ और मतलब है, कुछ और असर रखता है। आपने बोला कुछ भी नहीं, सारी बातें ट्रांसमिट कर दी। ऐसे ही है, ये गलत कह रहा हूं? अच्छा, ये हाथ लगाने से भी ट्रांसमिट हो रहा है और सामने बैठने से भी ट्रांसमिट हो रहा है। खाली मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ जुमाइनी नजरों से, मेरे जज्बात आप में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है। तिब इसको भी डिस्कस करती है कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपको लौकी खिलाए जाऊं, लौकी खिलाए जाऊं, कद्दू शरीफ खिलाए जाऊं, यकीन कीजिए आप, ये वक्त आएगा कि उसके अंदर तमाम तर बरकत होने के बावजूद वो आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करेगा, तरी का लेवल बढ़ाएगा, डिप्रेशन पैदा करेगा। दूध एक बहुत कमाल की चीज होने वो है, और मैं तरी के माहौल के अंदर, तरी के मरीज के अंदर मैं उसका लेवल बढ़ा दूं आपके अंदर, तो क्या होगा? दूध पिलाना शुरू करूं, वही सेहत बख्शने वाला दूध आपको नुकसान देगा। ऐसे ही शहद है। ठीक है। अच्छा, जब वो नुकसान देगा तो क्या होगा? आपका मूड डिप्रेशन में जाएगा, आप फिजिकली डाउन होंगे, आप मायूसी में जाएंगे, आपको लगेगा मैं अब जन्नत में कभी नहीं जा सकता। इब्लीस को इब्लीस क्यों कहा गया? ऐसा मायूस शख्स जो ये समझता है कि बस जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफी नहीं मिलेगी, उसने गुमान किया। और वो ऐसे मायूस बंदे, उसका नाम तो वैसे अजाजील है ना, इब्लीस का नाम तो अजाजील है। इब्लीस वो कब कहलाया? मायूस जब हुआ। तो हम ये कहेंगे कि एनवायरमेंट जमा डाइट जमा बाकी फैक्टर्स ने मिलके आपको आपके रूहानी मरकज से भी दूर कर दिया, आपके जज्बात को ही तब्दील कर दिया। थोड़ी देर पहले आप फरिश्ता थे, अब आप शैतान हैं। ये कैफियत हम गजा से भी कर सकते हैं और इससे मुतल्लिका दवाइयों से भी हो सकता है, ये असरात पैदा होते हैं। तो मेरी जो पिछली मर्तबा की जो गुफ्तगू का जो सेगमेंट रह गया था वो था अद्वियात के कुछ चंक्स रह गए थे कि कौन से अद्वियात क्या पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, मुलट्ठी ये वाली तरी पैदा करती है, अगर आप खाएंगे एक हद तक काम करती है, लेकिन एक्सट्रीम पे जाएंगे डिप्रेशन पैदा करती है। अच्छा अगर मुलट्ठी, आपके मुलट्ठी वाली कैफियत, मुलट्ठी, मुलट्ठी क्या कहेंगे जी इसको? लेकोराइस, लिकरिश, लिकरिश, लेकोराइस, यस यस लिकरिश, यस, या मुलट्ठी ऐसा। ग्लेसरेजा, ग्लेब्रा। तो अगर वो बढ़ गया है तो अब आप उसके असरात से दूर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिनेमन लीजिए, दारचीनी। अगर दारचीनी लेने से उसके असरात बढ़ गया तो मैं उसका अगले दर्जे पे ले जाऊंगा, मैं कहूंगा कि जिंजर लीजिए। अगर आप जिंजर लेने से आपका वो लेवल बढ़ गया है तो मैं आपको फिर कहूंगा कि दोबारा आप आ जाए लेकर लीजिए। ठीक है, सही। ये सर्कल है। इसके जरिए भी हम अपनी जहनी और रूहानी कैफियत को अपने काबू में ला सकते हैं। मसलन कोई बंदा जिसने मीठा ज्यादा इस्तेमाल किया, मुलट्ठी का इस्तेमाल ज्यादा किया, मीठी चीजें ज्यादा खाई, दूध ज्यादा पिया, ठंडे माहौल में रहा, मायूस लोगों के दरमियान में बैठा, अब उसको नींद नहीं आ रही। आपके पास वो आया है, आपकी कंप्लेन है कि जी मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा सवाल होगा, आपको ख्यालात ज्यादा आते हैं उस दौरान या कम आते हैं? आप कहते हैं मुझे ख्यालात बहुत आते हैं। ख्यालात क्या? उसने क्या कर दिया, उसने क्यों कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, काश मैं यूं ना करता। कोई डाउन, सब डाउन, काश मैंने उससे दोस्ती ना की होती। ठीक है। ये सब डिप्रेस कर रही है, लेकिन कंप्लेंट इसकी क्या है? कि मुझे नींद नहीं आ रही, दैट्स इट। अब अगर मैं कुछ चीजें उससे पूछता हूँ कि आपकी उम्र देखता हूँ कि अच्छा जी उम्र भी इसकी ऐसी है, बच्चा है, जैसे अभी इन दिनों भी मेरे पास केस यही चले थे ज्यादातर, बल्कि इंग्लैंड से ही आया है कि वो बच्चे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उनकी गजाएं भी ऐसी थी, वो मीठी चीजें खा रहे, चावल टाइप की फिरनियाँ, इस टाइप की गजाएं ले रहे, और उसके बाद क्या कर मायूस लोगों में बैठ रहे। तो वो डिप्रेशन की खास अलामत में उनको मैंने क्या क्या बताना चाहिए मुझे? एक्टिव करना है मुझे, उनके अंदर हरकत पैदा, भाई आप गेम करें ताकि आपके अंदर खुशकी बढ़े, आप कॉफी पीजिए, आप चॉकलेट खाइए, आप केक खाइए, आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हो, लेटे रहने वाले नहीं। वो लोगों जो होपफुल हो, फौजियों के साथ बैठिए, जो कर गुजरने वाले लोग होते हैं, या जो बड़े लोगों को स्टडी कीजिए जिन्होंने नामसाद हालत के अंदर अपने आप को, तो ये क्या हो रहा है, केमिकली तब्दीलियां आ रही हैं इससे। सही सही। केमिकल और सारी चीजें मिलके आखिर में क्या पैदा करता है? वो जो रूह है, हार्ट से निकलने वाली रूह, कार्बनिक एसिड टाइप की गैस पैदा होती है, वो गैस से भी अगले दर्जे पे एक रूह बनती है। इसी तरीके लीवर से निकलती है,
ऐसे ही स्प्लीन से निकलती है, ऐसे ही ब्रेन से निकलती है। वो रूह का बीमार होना, उसका सिग्नल बड़ी रूह को जाना ही असल में बीमारी है। और अभी इधर ही रोकना पड़ेगा हकीम साहब, 1 मिनट से कम रह गया है अभी। खत्म, एंड मेरी बात खत्म हो गई, खत्म, मेरी बात बात यहाँ पे खत्म। खत्म हो गई। और जब उस रूह को लगेगा आपका जिस्म बर्डन नहीं बर्दाश्त कर रहा, तो रूह कहेगी वापस आ जाओ। तमाम अरवाह इकट्ठी होके अपने अपने ऑर्गन की तरफ लौट जाती हैं, और इसको कहते हैं हम फिजिकली डेथ। यस, तो ये एक छोटा सा रूहानी नुक्ता था ऑन तिब, लेकिन काफ़ी बातें रह गई हैं। लेकिन द की थिंग इज, जैसे मुझे समझ आई है, दैट वी ऑल impact ourselves through the food that we eat, through the way that we think, and in the company of people, because ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि हम एनर्जी सोर्सेज हैं, एक तवानाई के, एक जिंदा मूवमेंट, हरकत करने वाला, हम है ही पैकेट्स तवानाई। हैं, जी, हम पैकेट्स हैं, हम एनर्जी पैकेट्स हैं एक तरह हाँ, से। energy packets, and there's all this transfer taking place, and this is what the Hakim Saab brings to the attention. Right, we've got to go straight into the news. So thank you very much. Inshallah ta'ala, I shall speak to you next time Friday and next Wednesday, inshallah. Allah Hafiz. इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।